dear students, today we have started our lesson number 3 more on MS Excel 2007. First, introduction. In the previous class you have learned how to write simple formula and create handy worksheet. In this chapter you will learn how to write advanced formula, cell referencing method and make use of the various function in MS Excel. So dear students, in the previous class we have introduced the MS Excel 2007 and how to use write formula in MS Excel 2007. We have seen in the last year. So types of cell referencing. Cell referencing means how a cell address behave in the formula when it is copied from one cell to the other. There are three types of cell referencing in MS Excel: relative referencing, absolute referencing, mixed referencing. Cell referencing means in the formula the given value, that means the column number and the row number, are how to perform them. Every cell has a name known as its address, which is made up of a column part and a row part. It is called relative when both parts are not fixed. It is called absolute when both are fixed. It is called mixed when only one of them is fixed. That means it is called relative when both parts are not fixed. It is called absolute when both parts are fixed, and it is called mixed when the only one of them is fixed. First we have seen relative referencing. The cell reference in this type is normal cell address like A1, C3, H5, etc. In relative referencing, the formula in the cell copied cell change according to the change in the position of the cell pointer. If you copy the formula across row or down column, the formula or cell reference change automatically. मीन्स जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है, फॉर एग्जाम्पल A1, C3, H5. In this, the A is column name and 1 is row number. The next C is column name and 3 is row number. H is column name and 5 is row number. For example, if the formula in D4 each is equal to B4 into C4. When the formula is copied vertically down, notice that the cell address in the formula has automatically changed. So student, look at the table. D4 means column number D and row number 4 is equal to B4 plus B4 into C4, means D4 value is depend on B4 into C4. What is the B4? Price. And what is the C4 is? Quantity. 30 into 2 means, what is the answer? The answer is 60, means multiplication of both. So अगर वहाँ पे D4 दिया है, इसका मतलब क्या कि हमें B4 और C4 की मल्टीप्लिकेशन करनी है और वहाँ पे जो आंसर आएगा वो आंसर कहाँ पे लेना है? D4 में. और उसको अगर हमें ऑटोमेटिकली करना है, यानी जैसे कि वैल्यू बहुत दी है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है A4 से लेके A7 तक वैल्यू है, और उसके अगर हमें D कॉलम में
आंसर्स लेने हैं तो एक फार्मूला टाइप करने के बाद अगर ऑटोमेटिकली बाकी के हमें लेने हैं तो क्या करना पड़ेगा, D4 में जो सेल है वो सेल के राइट कॉर्नर में आपके माउस का कर्सर रखना है जो प्लस में कन्वर्ट होगा। प्लस में कन्वर्ट होने के बाद क्या करना है, उसको नीचे ड्रैग करना है, कॉपी करना है। उसमें क्या होगा, सिर्फ सेल वैल्यू जो है, कॉलम वैल्यू नहीं, सिर्फ सेल वैल्यू जो है, सॉरी रो वैल्यू जो है वो रो वैल्यू चेंज होंगी। जैसे कि B5, B6, B7, C5, C6 और C7 और आंसर जो है ऑटोमेटिकली आएगा। Absolute referencing. An absolute referencing is specified by using the dollar sign along with the column and the row number in the cell. For example, $B, $4 is an absolute referencing. Using the dollar means fix to a specific location. If you copy the fix to a specific location, if you copy the formula across row or down columns, the absolute reference remains unchanged. जैसे कि हमने सेल रेफरेंसिंग में देखा था कि अगर हम कोई फार्मूला टाइप करते हैं और टाइप करने के बाद अगर नीचे ड्रैग करते हैं तो क्या होगा, उसको हम वो जो रो नंबर है वो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, चेंज करता है। बट एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में क्या होगा, अगर हम एक बार टाइप करने के बाद अगर उसको चेंज करते हैं तो उसमें जो भी कंटेंट है वो कंटेंट जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, उसमें किसी भी टाइप का चेंज नहीं होता है। In the example, you see that D4 has to the formula is equal to $B, $4 into 2, and when it is copied to the lower rows, there is no change in the cell address. ये कैसा होता है कि हम पर्टिकुलरली अगर कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो उस टाइम में यूज़ किया जाता है। जैसे कि वो डॉलर का साइन जो वो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। डॉलर के आपको कोई वहाँ पे सेल वगैरह दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, वो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है जो चेंज नहीं होगी और जिसमें हम ड्रैग नहीं कर सकते। वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 1 बाय 1 जो है वहाँ पे जैसे कि 4 लिखा है, 4 है, B है, वहाँ पे C करना है, D करना है, वो हमें मैन्युअली करना पड़ेगा। सेल रेफरेंसिंग के जैसे यहाँ पे हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग. Mixed cell referencing is when one part of the cell address is relative and the other is absolute. So there the column or the row number should have a dollar along with it. For example, $B4 is a mixed cell reference with absolute column and relative row, and $4 is a mixed cell reference with relative column and absolute row. देखो यहाँ पे क्या बताया गया आपको कि जैसे मिक्स सेल रेफरेंसिंग मीन्स यहाँ पे $B4 क्या है, एक मिक्स सेल रेफरेंस दिया है जो आपको जैसे एब्सोल्यूट के जैसे दिखाई दे रहा है। उसमें अगर हम ड्रैग करते हैं तो ड्रैग करने के बाद वो क्या होगा, रो की जो वैल्यू है, जो रो नंबर है, वो रो नंबर ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएगा। अगर वो नंबर चेंज होता है ऑटोमेटिकली तो हम क्या करते हैं, उसको मिक्स सेल रेफरेंसिंग। यूजिंग द फंक्शन, अब हमें फंक्शन यूज़ कैसे करना है। लास्ट ईयर आपको फार्मूला क्रिएट कैसे करना है, टाइप कैसे करना है वो बताया गया था। अब यूजिंग द फंक्शन मीन्स कि आपके सिस्टम में, आपके ओपन के एप्लीकेशन प्रोग्राम में जो भी फंक्शंस दिए हैं उस फंक्शंस के थ्रू कैलकुलेशन करना और उसका ही यूज़ करना। फंक्शन आर प्रीडिफाइंड कमांड दैट एक्ट ऑन अ सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स एंड परफॉर्म सम पर्टिकुलर ऑपरेशन क्विकली। फंक्शंस क्या है,
एक प्री डिफाइंड रेडीमेड कमांड है जो आपके प्रोग्राम में ऑलरेडी दी है, जिसके ऊपर हम सेल रेंज अगर वहाँ पे सेट करते हैं तो हमें हमारा जो आंसर से या हमारा जो ऑपरेशन है वो क्विकली ऑपरेट होगा। MS Excel 2007 provides a variety of functions like AutoSum, recently used, financial, logical, text, date and time, lookup and reference, maths and trick and more functions जैसे कि ऑटोसम, रिसेंटली यूज, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, ऐसे टाइप के फंक्शंस जो होते हैं वो हमें यहाँ पे इफ फंक्शंस में दिखाई देते हैं। अब इसका हम वन बाय वन यूज़ देखेंगे कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। फर्स्ट, दिस फंक्शन आर प्रेजेंट इन द फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप्स ऑफ फार्मूला टैब ऑन द ribbon in MS Excel. While using functions, the following details have to be kept in mind. All the functions have two parts, the function name and arguments. जो हम फंक्शंस यूज़ करते हैं वो उसके क्या होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं। पहला होता है फंक्शन नेम और दूसरा होता है आर्ग्यूमेंट्स। अ फंक्शन मस्ट ऑलवेज बिगिन विथ एन इक्वल साइन। जो फंक्शन होता है वो फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, इक्वल के साइन से। लेट अस स्टडी सम कॉमन फंक्शंस यूज्ड इन MS Excel। अब मैं भी आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि आर्ग्यूमेंट्स यानी क्या। जैसे कि फंक्शन नेम क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिया है सम। सम यानी क्या है, फंक्शन नेम जो हमें एक्टिविटी करनी है, सम करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मीन, मैक्सिमाइज, ये जो हम यूज़ करते हैं इसको कहा जाता है फंक्शन नेम। Now next is sum. It adds all the numbers in given range of cells. Syntax is equal to sum range or numbers. Example is equal to sum in bracket A1 into A1 plus A5 gives the output 129. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सम करना है, मीन्स एडिशन करनी है। कहाँ से कहाँ तक, A1 से लेके A5 तक, यानी A1 से लेके A5 तक कुछ वैल्यूज़ दी है और उसकी क्या करनी है, हमें सम करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इफ़ फंक्शन का यूज़ करेंगे और वहाँ पे क्या सिंटैक्स आएगा, इज इक्वल टू सम इन ब्रैकेट रेंज और नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू सम A1 टू A5 गिव द आउटपुट 129। ये जो प्रैक्टिकल है ये आप आपके मोबाइल में भी MS Excel 2007 जो कि आपको प्ले स्टोर में अवेलेबल है वो डाउनलोड करके देख सकते हो, जिनके घर पे सिस्टम नहीं है वो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है एवरेज। इट कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द नंबर इन द गिवन रेंज ऑफ सेल। सिंटैक्स इज इक्वल टू एवरेज in bracket range or numbers. Example, average in brackets A1 A5 gives the output 25.8. That means यहाँ पे क्या करना है, हमें एवरेज कैलकुलेट करना है। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारा जो भी फंक्शन है वो फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, इज इक्वल टू साइन से, और इज इक्वल टू साइन के बाद क्या आता है, फंक्शन नेम। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एवरेज काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे एवरेज लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट में जो सेल रेंज है वो देनी है हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, A1 से लेके A5 तक के जो सेल्स है उनको सिलेक्ट करेंगे और अगर ओके पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे एवरेज काउंट करके शो किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, जब हम फंक्शन यूज़ करते हैं तो हमें किसी भी टाइप की कोई भी एक्टिविटी नहीं, सिर्फ वहाँ से फंक्शन में जाके जो लिस्ट ओपन होती है उसमें से सम, एवरेज, इस टाइप के सिर्फ फंक्शन नेम यूज़ करने हैं और जो सेल रेफरेंस होता है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि A5 से लेके जहाँ पे आपने वैल्यू डाली होगी वो वैल्यू को सिलेक्ट करना होता है और ओके पे क्लिक करना होता है। नेक्स्ट इज काउंट।
It counts the number of cells in a given range of cells that contains numerical value. Syntax is equal to count in bracket range or number. Example is equal to count A1 A5 gives the output 4. क्या करना है हमें वहाँ पे? सिर्फ काउंट करना है. तो काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे? फंक्शन में जाएंगे, काउंट का फंक्शन सेलेक्ट करेंगे और जो सेल रेफरेंस है वो सेल रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे. वो सेल रेफरेंस को हम क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज मैक्स. मैक्स मीन मैक्सिमम. द मैक्सिमम वैल्यू. It returns the largest value in a given range of cells. हमें क्या करना है? जो भी हमारे पास गिवन वैल्यू है उसमें से जो लार्जेस्ट नंबर है उसको अगर हमें काउंट करना है तो हम मैक्सिमम फंक्शन यूज़ करते हैं. उसका सिंटैक्स इज इक्वल टू मैक्स इन ब्रैकेट रेंज और नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल मैक्स A1 to A5. जैसे कि आपको यहाँ पे A1 to A5 में दिखाई दे रहा है कि लार्जेस्ट वैल्यू कहाँ पे है? 50. वो कहाँ पे? A4 में. अगर हम A1 से लेके फंक्शन में जाएंगे, मैक्स यूज़ करेंगे, सेल रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वहाँ पे हमें शो की जाएगी. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है 50. आपने डेटा दिया है और डेटा में अगर कोई और वैल्यू डाली है उसमें जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो लार्जेस्ट नंबर आपको वहाँ पे शो किया जाएगा. नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज मीन. इट रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन अ गिवन रेंज ऑफ सेल्स. मीन फंक्शन यानी क्या? कि आपके पास जो डेटा है वो डेटा में से सबसे लोवेस्ट वैल्यू, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे लोवेस्ट वैल्यू जो भी है वो वैल्यू को काउंट करना. सिंटैक्स इज इक्वल टू मीन इन ब्रैकेट रेंज और नंबर्स. एग्जाम्पल इज इक्वल टू मीन A1 into A5 is equal to mean A1 to A5 gives the output 10. यानी कि यहाँ पे हमारे A1 से लेके A5 तक की जो हमने रेंज सिलेक्ट की है वो सिलेक्ट किए हुए रेंज में हमारी जो स्मॉलेस्ट या लोवेस्ट वैल्यू जो है वो क्या है? 10 है. इसलिए वहाँ पे आंसर क्या आएगा? 10. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जो कुछ बेसिक फंक्शन है उनके इंफॉर्मेशन पढ़ी है. अब उस फंक्शन को अप्लाई कैसे करना है? अब जैसे कि यहाँ पे पहले दिया है हमें इफ फंक्शन. इफ फंक्शन हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास कंडीशंस होती है, यानी एक ट्रू और फॉल्स की, राइट या रॉन्ग की, पास या फेल की. ऐसी अगर हमारे पास कंडीशंस है तो वो कंडीशंस अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं? इफ फंक्शन का यूज़ करते हैं. नाउ लेट अस सी. So students, this part we will continue on the next period.